will repeat that. ठीक है, तो देखो, see, this is what the skeletal, I just made a skeletal of one side. Okay, so right hand side I kept as it is. So symmetrical diagram will get generated for this truss. So just right now forget about this red line which I have marked on this truss. Okay, we will just focus on the black line. तो जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था in Hove truss, in the same way what we will do, we will assign the names to these segments on the principal rafter with a capital alphabets. ठीक है, तो ये जो segments है वो segments को अपन ने कैपिटल अल्फाबेट से नेम असाइन किए, लाइक ABCD, लाइक ऑन अप टू अ Q. ठीक है, and after that the bottom rafter is with the name of capital R. Okay, उसके बाद जो कुछ भी internal triangles generate होते हैं, so that all internal triangles we assign the name as 1 2 3 4 like that up to a 15. So 15 is the middle largest triangle in the truss. Okay, so till that I assign the मला वरचा triangle refer करावा लागतो. ठीक है, सो बेटर वे इट शुड बी इन ऑर्डर. ठीक है, एंड 15 के बाद फिर आपको राइट हैंड साइड के ट्रायंगल्स को भी नेम देने हैं, बट जस्ट टू टेल यू अबाउट हाउ टू ड्रॉ, सो आई स्किप्ड दिस राइट हैंड साइड ट्रस. ओके, तो ये मैंने ट्रस जनरेट कर लिया. तो इसी हाउ आई हैव जनरेटेड दिस ट्रस, तो इसमें किसी को डाउट है? नो डाउट. नो ना? No, ma'am. Okay, then we will start with the graphical method. ठीक है, तो अभी graphical method में क्या करना है, देखो, these are the dead load which I have shown on my truss, and I have given the scale to my drawing as a dead load. I have given 1 centimeter for 1.4 kilonewton load. ठीक है, तो यहाँ मैंने स्केल क्या दिया है, my smallest force I assigned it as a 1 centimeter. Okay, so accordingly the other forces will be of a 2 centimeter. तो मुझे क्या करना है, ये सारे force draw करके लेने, as my forces are acting vertically downward direction. So that force I marked one after other in the vertically downward direction, like A, B, C, D accordingly, which I already told you in the Hove truss. तो कैसे मार्क किए, पहले मैंने A force लिया. ओके, तो A फोर्स मेरा क्या था, 1.4 था. सो 1.4 के लिए मेरा स्केल था 1 सेंटीमीटर. सो हियर आई मार्क्ड 1 सेंटीमीटर. ओके, then after that my next force is BC force. My next force is in between the BC segment, so I will give the name to this force as a BC force. So next force will be of 2 centimeter, so I marked it after my first force with the length of 2 centimeter as per the scale. तो ये BC force हुआ. उसके आगे का फोर्स मेरा CD फोर्स है जो 2.8 का है, तो 2.8 मेरे स्केल के हिसाब से आएगा 2 सेंटीमीटर. सो ये CD मैंने 2 सेंटीमीटर का मार्क कर लिया. ठीक है, लाइकवाइज आई मार्क ऑल द फोर्सेस अप टू द लास्ट Q फोर्स. ओके, तो यहाँ Q फोर्स तक मैंने सब फोर्सेस को मार्क कर लिए. ठीक है, then my middle force is in between IJ. Okay, the middle force name is IJ. So I will draw this bottom rafter R from the midspan of IJ. Okay, तो ये IJ यहाँ मैंने मार्क किया है. The names are too small, so it is not visible. I will enlarge my diagram a little bit. Okay, now you can see this I and J. These two are the middle force, and from the midspan of this middle force I mark the R. Okay, so now what we will start, we will start solving this every triangles which are given in my truss. Okay, so first we will concentrate on the triangle 1. So triangle 1 is made of 3 sides. One side is B1, then second side is 1R, and third side is 1 3. Okay, so to locate any point we need a 2 dimensions or two sides. तो 2 sides मुझे यहाँ locate करने graphical method में to generate this triangle on this graph. Okay,
तो हमेशा जब आप ट्रायंगल सॉल्व करते हो, whenever you are plotting this triangle on the graph, so please remember that always you have to first choose either principal rafter side or a bottom rafter side. ठीक है, जब आप ट्रायंगल सॉल्व करते हो तो आपको ये दोनों साइड पहले लेने हैं, उसके बाद थर्ड साइड लेना है अगर अवेलेबल है तो सोल्व दिस फर्स्ट साइड, फर्स्ट टू साइड्स. ओके, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है. 1 सेकेंड. तो अभी ये मेरा फर्स्ट ट्रायंगल है. सो फर्स्ट ट्रायंगल में मेरे प्रिंसिपल राफ्टर की साइड कौन सी आती है? B1 एंड द बॉटम राफ्टर कौन सा आता है? 1R. ओके, सो आई विल मार्क दिस टू लाइंस ऑन माय ग्राफ. सो B1 कहाँ है? दिस इज द B. ओके, सो द B इज ओवर हियर एंड 1R. 1R is this is the R line or horizontal line. Okay, so for B and R, 1 is a common. So B1 and R1. So B1 and R1. So this 1 will come on this R line. ठीक है, तो R line पे यहाँ कहीं तो ये 1 आएगा. ठीक है, तो कैसे करना है फिर? ये जो B1 is the line which is shown on our truss. So to this line or to this segment we have to draw the parallel line from the B point. ओके, तो यहाँ B पॉइंट से मुझे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है R तक. ओके, सो R तक जब ड्रॉ करूंगी सो आई विल गेट दिस 1 पॉइंट ओवर हियर. ओके, तो B1 एंड R1 आई कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय एट अ पॉइंट 1. सो यहाँ B1 and R1 को मैंने कनेक्ट किया and I mark the 1 point over here. So keep in mind that in the graph, in the triangle, so the triangles which are marked with the numbers are will become a point in the graph. Okay, तो ये पूरा 1 ट्रायंगल था जो ग्राफ पे आपका एक पॉइंट बन गया 1. Okay, तो now after marking this 1 point, I will shift towards the second point. अपना क्या है, बस अपन को Yes, ma'am. Okay. So now we will, okay. Now we will move towards the second point. How to mark it on the graph. 1 second. Okay. So now we will mark this second triangle. Okay. तो मैंने बोला था कि ट्रायंगल जब आप एनालाइज करते हो, so firstly you have to concentrate on the principal rafter side या फिर bottom rafter side. तो ये जो second triangle है, in this second triangle we have only the principal line is there, principal rafter line is there. Bottom rafter से ये triangle second नहीं बन रहा है. ठीक है. So we will focus on C2 and the line of the previous triangle 1, 2. Because the bottom rafter line is not in this second triangle. ठीक है, तो second triangle में line कौन से आते हैं? C2 आता है, 2, 3 आता है and 2, 1 आता है. So 2, 3 is not the bottom rafter. तो अपन पहले principal rafter ले लेंगे C2 and the second one is the line from the previous triangle, that is 1, 2. ठीक है, so 1 point मैंने already locate किया है. C is the C which I have marked here in the graph. तो यहाँ मैंने C मार्क किया है पॉइंट. तो C and 1 को कॉमन पॉइंट कौन सा है? 2 है. ओके, तो मुझे क्या करना है? C2 this C2 parallel line I have to draw it from the C point which I have marked it on the graph. तो ये C पॉइंट जो मैंने ग्राफ पे मार्क किया है वहां से मुझे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है. किसको पैरेलल टू दिस C2 लाइन. ओके, तो ये C2 लाइन को मैं यहाँ से पैरेलल लाइन मार्क करूंगी. ओके, देन आफ्टर दैट already I located this first point. So from this first point I will draw this parallel line to this 1, 2 line. ओके, तो 1, 2 लाइन को मैं पैरेलल मार्क करूंगी. तो ये C का लाइन जो मैंने अभी पैरेलल मार्क किया था वो लाइन and 1 से मैंने पैरेलल लाइन मार्क किया. So the intersection of these two lines will be a 2. क्योंकि C2 and 1, 2 में कॉमन पॉइंट कौन सा है? 2 है. ओके, so the intersection of this 1, 2 and C2 will be the 2 points. So I mark this 2 point over here. So my second triangle has get converted as a point in my graph. Okay, so I mark this 2 point over here. समझ में आया 2 कैसे मार्क किया है? Okay. Now we will move towards the next triangle, third triangle. अभी third triangle में principal rafter का segment नहीं line नहीं है, but bottom rafter is there. So 3R and the
line from the previous triangle. तो ये कौन सा 2 3. Okay, so 2 3 and the 3 are the two sides of this third triangles. So that we will mark in our graph. Okay, in our this graphical method. So 2 3 and 3 are. Okay, so R is here. So ये 3 point R पे, ये R line पे कहीं तो आ जाएगा 3 point. Okay, क्योंकि ये 3 is rested on this R line. So ये 3 जो आएगा ये R के लाइन पे कहीं तो आ जाएगा, बट कहाँ आएगा? So 2 से निकलेगा पैरेलल लाइन टू दिस 2 3 को पैरेलल लाइन 2 से निकलेगा और जो R पे कनेक्ट करेगा वहां मुझे 3 पॉइंट मिलेगा. ओके, सो 2 3. So to parallel to this line, I will draw the line from my 2 point. So 2 से मैंने parallel line R पे draw कर लिया. Okay, so this is my R line. Okay, तो R line पे मैंने 2 से parallel line draw किया. The intersection point of these 2 and this R will be a 3. Okay, so ये 3 triangle का 2 3 and R3 means 2 and R का जो intersection आएगा that will be a 3 point. Okay, so ये R and 3 से मैंने parallel line जो intersect जो connect किया and the intersection point will be a third point over here. So I mark this 3 point on. Okay, thank you Omkar. Now next, now once we mark this third point, we will move towards the fourth triangle. ठीक है, so अभी ये fourth triangle पे again the fourth triangle is connected with this bottom rafter. तो bottom rafter अपना R है, उसको principal rafter से connect नहीं किया है. Okay, so we will consider this line to develop the fourth point on the graph. Okay, तो ये line consider करेंगे. कौन सा 4R and the line from the previous triangle, that is 3 4. Okay, so 4R and the 3 4s which will gives me a 4 number. Okay, so that means R पे कहीं तो मेरा 4 point होगा. Okay, and the 3 से मुझे line draw करनी है R पे. So यहाँ मेरा 3 point already R पे ही आ रहा है. This is my R line. Okay, so ये 3 point मेरा R पे ही आ रहा है. So 3 से मुझे R पे line draw करना है. So the intersection point from the line 3 and from the line R will be the fourth point. So 3 मेरा already R पे है, तो यहीं पे मेरा fourth point आ जाएगा. ओके, और यहाँ देखो मैंने ये 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं 3 and 4. तो ये 4 ऑलरेडी मुझे यही मिलता है. ओके, दैट मीन्स दिस 3 4 लाइन इज ऑफ अ 0 फोर्स मेंबर. क्योंकि मुझे ये दोनों भी एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, इसलिए 0 फोर्स है. एंड यू कैन सी इट फ्रॉम द डायग्राम आल्सो, as we know that which we learned in the engineering mechanics, when the 3 forces are connected at a one particular point, and from that 3 forces, if 2 forces are collinear, एक ही लाइन पे है, the third will become a 0 force member. तो यहाँ ग्राफ आपको डायग्राम में भी दिखेगा 3 4 will be a 0 force member. एंड यहाँ ग्राफ पे भी मुझे एज अ फॉर्म ऑफ अ पॉइंट ही मिला है. दैट मीन्स उसका मेरा लेंथ आएगा 0 सेंटीमीटर. दैट मीन्स 0 फोर्स आएगा. तो 3 4 मेरा 0 फोर्स मेंबर रहेगा. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. समझ Okay. Now we got this fourth triangle. Now we will shift towards the fifth triangle. So fifth triangle is connected with this principal rafter. So we will consider this line for our analysis. So D5 and the line from the previous triangle, that is 4 5. So I will draw the line parallel to this line from the D point. तो यहाँ D से मैंने parallel line draw किया. Okay. So this D से मैंने इसको parallel line draw किया on the graph. And the 4 5 which I have drawn it from the fourth point on the D line. Okay, तो ये D से जो लाइन ड्रॉ किया है उस पे मैंने 4 से लाइन ड्रॉ किया, पैरेलल लाइन. पैरेलल किसको? ये 4 5 को पैरेलल लाइन. तो इसको पैरेलल लाइन मैंने 4 से ड्रॉ किया. So the intersection line, intersection point of this D5 and 4 5 is the fifth point. Okay, so ये हो जाएगा आपका fifth point. So fifth point, so this fifth triangle will get converted as a point over here. Okay, तो ये फिर मुझे fifth point मिल गया यहाँ. ठीक है.
Now, once I got the fifth point, I will shift towards the sixth point or a sixth triangle. The sixth triangle, again, it is connected with the principal rafter, okay, and the line from the previous triangle. So E6 and 5-6. तो E से मैं ये parallel line draw करूंगी and 5 से यहाँ ये वाला parallel line draw करूंगी. The intersection of these two lines will give me a sixth point. तो E से इसको parallel and 5th से इसको parallel. ठीक है, तो E से ये वाला पैरेलल लाइन एंड फिफ्थ से ये वाला पैरेलल लाइन. सो इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी माय सिक्स्थ, sorry, intersection between these two lines will be a sixth point which I got over here. ठीक है, तो 6 तक सबको समझ में आया? have generated this graphical method. Yes, ma'am. Okay, thank you. Then after that, we will move towards the seventh triangle. Now, seventh triangle is formed from the bottom principal rafter and the line from the previous triangle. Okay, so तो ये 6, 7 and R7 are the two lines which will help to make this seventh number of triangle. Okay, so मैं 6 से इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगी, जो 6 मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था. तो 6 से इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगी. यहाँ 6 है, 6 से पैरेलल लाइन ड्रॉ किया. ओके, कहाँ करना है? आर पे करना है. ठीक है, पैरेलल लाइन ड्रॉ आर तक उसको कनेक्ट करना है. सो आर से एक लाइन ड्रॉ करूंगी. सो द कनेक्शन ऑफ दिस 6-7 लाइन एंड आर लाइन विल बी द intersection point of this 6th 7th line and R line will be a 7. ओके, तो ये 6-7 से एंड आर से जो लाइन आता है, तो ये दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन होगा 7th नंबर ऑफ पॉइंट. सो हियर आई गॉट दिस 7th नंबर ऑफ पॉइंट ओवर हियर ऑन द आर इटसेल्फ. ओके, तो आर लाइन पे मुझे ये 7 नंबर ऑफ पॉइंट मिला. ठीक है, नाउ आई विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट 8th लाइन पे मैं मूव करूंगी. ठीक है, तो अभी 8th पे मुझे मूव करना है. सो नाउ यू कैन सी दैट, जैसे मैंने आपको बोला था कि फॉर every triangle, to analyze every triangle, the triangle should be connected either with the principal rafter or with the bottom rafter. Okay, so bottom rafter का जो R line है वो ऑलरेडी अपने ग्राफिकल मेथड पे यहाँ ड्रॉ किया हुआ है. ठीक है, तो इसीलिए मैंने 7th तक सारे ट्रायंगल्स को मार्क किया. Okay, because I know this R is a reference line which is already marked in my graph. Okay, but अभी next यहाँ से क्या हो रहा है? This 8th number of triangle, 9, 10, 11, 12, 13, these all triangle are rested on this line. Okay, अभी उनका ये जो reference line है वो ये बदल रहा है. ठीक है, so we will call this line as a 15 number of line. तो ये 15 पे सारे रेस्ट है. तो मुझे पहले ये लाइन ड्रॉ करनी है सो दैट आई कैन जनरेट दिस ऑल द ट्रायंगल्स ऑन माय ग्राफ. ओके, तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे? सो व्हाट आई विल डू, आई विल वर्चुअली क्रिएट सम अदर ट्रायंगल्स इंस्टेड ऑफ दिस 9, 10, 11, 12 टू गेट दिस रेफरेंस लाइन. ओके, ऑन माय ग्राफ. ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, तो मैंने ये जो 8, 9, 10, 11, 12, 13 के जो ट्रायंगल थे, तो मैंने उनको स्किप किया. क्यों टेंटेटिवली स्किप किया? क्यों स्किप किया? क्योंकि मुझे ये 15 नंबर ऑफ लाइन एज अ रेफरेंस लाइन आई नीड टू ड्रॉ इट ऑन माय ग्राफ. ये जो 15 का लाइन है, तो ये मुझे मेरे ग्राफ पे यहाँ ड्रॉ करना है और उसके हिसाब से फिर मेरे सारे ट्रायंगल्स यहाँ जनरेट होंगे. ठीक है, तो फिर मुझे क्या करना है? आई नीड टू टेक अ कॉमन बेस फ्रॉम द आर सपोर्ट इटसेल्फ, क्योंकि आर रेफरेंस ऑलरेडी है. तो मैंने क्या किया, ये जो मेरा एंड पॉइंट था वहां से मैंने नेक्स्ट वाले सारे पॉइंट को कनेक्ट किया. ओके, विद रेड लाइन विच यू कैन सी ऑन माय ट्रस. तो रेड लाइन से सबको कनेक्ट किया. तो फिर कौन से ट्रायंगल जनरेट हुए? ये वाला एक ट्रायंगल जनरेट हुआ. ओके, सो फॉर दिस ट्रायंगल आई नेम्ड इट एज अ W. देन मेरा नेक्स्ट वाला ये ट्रायंगल जनरेट हुआ. सो टू दैट ट्रायंगल आई नेम्ड इट एज X. देन फिर मेरा ये वाला ट्रायंगल जनरेट हुआ, उसको मैंने नेम दिया Y. एंड द लास्ट एक टोटल 4 ट्रायंगल मेरे जनरेट हुए. तो ऑल दैट 4 ट्रायंगल्स आई नेम्ड इट एज W, X, Y एंड Z. Understood what I did? Yes, ma'am. Yes, Okay.
तो अभी क्या करना है, तो मुझे पहले ये W, X, Y and Z जो triangles है, that I need to locate on my graph in a form of a point. तो W मेरा यहाँ जो triangle है, that will get generate over here in a form of a point. तो ये W, X, Y, Z मुझे ये ग्राफ पे लोकेट करने, मैंने 7 तक लोकेट कर लिया अभी तक. ओके, तो now what we will after 7, so now my next triangle will be a W triangle. Okay, so now this W triangle is formed by FW and 7W. Okay, FW and 7W ये दो लाइन से वो मेरा ट्रायंगल बनता है. ठीक है, so I will mark these two lines. I will intersect this FW and 7W line. Okay, to get this W point. ठीक है, तो F कहाँ है मेरा? So F is over here. तो F से मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया. This is the parallel line. Okay, तो ये F से मैंने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ किया. ओके, एंड 7 से मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगी, इसको पैरेलल 7 से ये इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगी. तो 7 से मैंने पैरेलल लाइन F पे ड्रॉ किया. सो दिस कनेक्शन पॉइंट विल बी अ W. अंडरस्टूड? तो मुझे यहाँ W मिला. समझ में आया W कैसे मिला? Yes, ma'am. Okay, now we got this W point. Okay, now after that we will find out this X point. Okay, X point कैसे मिलेगा? GX and WX are two common line for this triangle. So G से मैं ये parallel line draw करूंगी. So G से ये वाला parallel line draw किया. Okay, and W से ये वाला parallel line draw करूंगी, this red line को. तो G से ये, okay, and W से ये parallel line which I intersected on that G line and I got the X point over here. At intersection I got this X point. ठीक है, ये 7 तक ड्रॉ किया था अपन ने. ओके, एंड आफ्टर दैट वी गॉट W point, X point. समझ में आया? Yes, yes, ma'am. Okay, thank you. So X, now we located this X point. Now we will locate this Y point. So Y point is connected with this HY and XY. Okay, so HY and XY. So H से मैं parallel line draw करूंगी. So H से मैंने parallel line draw किया. Okay, and after that H से किया and X से इसको parallel line draw करना है. ये वाला parallel line मुझे X से draw करना है. ठीक है, तो ये जो X लोकेट किया था उससे मैंने ये H पे पैरेलल लाइन ड्रॉ किया. सो आई गॉट दिस एट द कनेक्शन पॉइंट आई गॉट माय Y पॉइंट. ओके, सो हियर आई गॉट माय Y पॉइंट. ठीक है, सो नाउ Y के बाद बस Z बचता है. तो Z इज कनेक्टेड विद दिस IZ एंड YZ. ओके, सो I से यहाँ मैंने लाइन ड्रॉ किया है, I से पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है एंड Y से ये वाला पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगी. थर्ड रेड जो लाइन है उसको पैरेलल लाइन में Y से ड्रॉ करूंगी. ओके, सो द कनेक्शन पॉइंट विल बी अ Z पॉइंट. तो मुझे अभी Z पॉइंट मिला. ठीक है, तो प्रीवियसली अपन ने 7 तक लाइन निकाले थे, उसके बाद अपन ने रेड लाइन ये जनरेट कर दिया. ठीक है, तो मुझे Z तक सारे पॉइंट मिले. नाउ आई गॉट दिस Z पॉइंट ऑल्सो. ठीक है, सो Z पॉइंट मीन्स यहाँ तक मुझे अभी Z पॉइंट तक सब मिला है. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू आफ्टर दिस Z पॉइंट, वी विल फाइंड आउट दिस 15 नंबर. ओके, 15 नंबर अपन को मीन्स ये लाइन अपन को फाइंड आउट करना है. सो अपन ये 15 नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे. सो द 15 नंबर ऑफ ट्रायंगल इज मेड अप ऑफ Z15 एंड R15. ओके, सो R पे कहीं तो आपका 15 आएगा एंड Z से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है टू गेट दिस 15. तो किसको? ये वाले जो का रेफरेंस लाइन था, तो ये रेफरेंस लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है ऑन दी R टू गेट दिस 15 नंबर. सो मैंने यहाँ से Z से पैरेलल लाइन ड्रॉ किया on the R to get this 15 point. So I got this 15th number of point. Understood? Yes, ma'am. Okay. तो अपन ने ये 7th तक सारा ड्रॉ किया था, उसके बाद ये रेड लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद मुझे अभी ये 15th का रेफरेंस लाइन मिला है. Now once I got this reference line of 15, then I will start analyzing these all triangles in a reverse order up to 7
ओके तो अभी ये सारे ट्रायंगल्स अपन एनालाइज करेंगे. सो फर्स्ट वी विल एनालाइज दिस 14th नंबर ऑफ ट्रायंगल. सो 14th नंबर ऑफ ट्रायंगल इज कनेक्टेड विथ I14 एंड 1514. ठीक है. सो 1514 एंड I14. सो I14 जो है I से आपको ये 14 वाला लाइन ड्रॉ करना है. सो द I से एंड 15 से जो 14 का लाइन आएगा, दैट मीन्स itself it is on over here where we got this Z point. So I mark this the intersection point, I marked it as a 14. ओके तो यहाँ मैंने 14 मार्क किया. देखो ये पहले से ही 15 अवेलेबल था. ओके 15 का लाइन पहले से ही अवेलेबल था. I को वो इंटरसेक्ट करना था. तो जहां ये 15 का लाइन I को इंटरसेक्ट करता है, सो हियर आई विल गेट द 14th नंबर ऑफ पॉइंट. सो 15 एंड I का जो लाइन था तो वहां मुझे 14 का पॉइंट मिलता है. सो हियर आई गॉट दिस 14th पॉइंट. ठीक है. सो नाउ आई विल फाइंड आउट द 13th नंबर ऑफ पॉइंट. ये 13 वाला ट्रायंगल में एनालाइज करूंगी. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग इन द रिवर्स ऑर्डर. तो ये 13 का मैं पॉइंट एनालाइज करूंगी. सो 13 कैसे मिलेगा? H is the principal rafter. So H13 and 1413 are two lines. H13 and 1413. So H का already parallel line अपना available है. This one is the parallel line is available. Okay. So 1413 parallel line आपको draw करना है. कहाँ से? 14 के point से. So 14 के point से इसको parallel line draw करना है. कहाँ तक? H तक. Okay. तो ये H मेरा already available है. Okay. एंड मैंने 14 से पैरेलल लाइन ड्रॉ किया. सो आई गॉट द 13th पॉइंट ओवर हियर. ओके सो यहाँ मुझे 13 का पॉइंट मिला. नाउ आई विल फाइंड आउट द 12 नंबर ऑफ पॉइंट. सो ये 12th पॉइंट में फाइंड आउट करूंगी. ओके सो 12th पॉइंट इज रेस्टेड ऑन द 15th रेफरेंस लाइन. सो 15th 12 एंड 13th 12. ओके 13 12 एंड 15 12. सो 13 पॉइंट इज ऑलरेडी विद अस. सो 13 से मैं ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगी. किस पे? 15th के लाइन पे. ओके सो इंटरसेक्शन ऑफ दिस 13 एंड 15 विल बी अ 12. तो कहाँ थे अपन? एक सेकेंड. 13 का पॉइंट जनरेट किया था. ठीक है. सो वी गॉट दिस 13th पॉइंट. नाउ वी विल फाइंड आउट दिस 12th पॉइंट. तो 12th पॉइंट फाइंड आउट करना है. सो 13 12 एंड 15 12. सो 15 पॉइंट ऑलरेडी विद अस एंड 13 12 ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है 13 से. तो 13 से मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगी ऑन 15th रेफरेंस लाइन. यहाँ 13 से पैरेलल लाइन ड्रॉ किया एंड आई गॉट द 12th नंबर ऑफ पॉइंट ओवर हियर. ओके अंडरस्टूड? Yes, ma'am. हेलो समवन प्लीज रिप्लाई. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Okay, ma'am. thank you. Yes, thank you. So 12th point we got over here. ठीक है. Now we will find out this 11. So 11 is connected with this 12 11 and 15 11. So 12 से ये parallel line draw करना है 15 line पे. Okay. So 12 से parallel line draw करेंगे 15 की line पे. तो already our 12th point is on the 15. So 12 से parallel line draw ही नहीं कर पाएंगे 15 पे क्योंकि 12 itself is located on the 15. सो डायरेक्टली अपना 11 पॉइंट आएगा वहीं पे जहां 12 है वहीं पे 11th पॉइंट आएगा. ओके तो सी हियर अगेन एज पर द engineering mechanics. So when three forces are connected at a one point and from that three forces two are the collinear, then third will become a zero force. तो ये 11 12 ऑलरेडी जीरो फोर्स यहाँ बन रहा है. ठीक है. तो सेम यहाँ मुझे 11 12 एक ही पॉइंट पे आए तो ये मुझे जीरो फोर्स यहाँ मिल रहा है. ठीक है. तो वी गॉट दिस 11th पॉइंट on the same 12th number of point. ठीक है. Now we will find out this 10th number of point. ठीक है. So 10th is connected with G10 and 1110. So we will draw the parallel line to this from the 11 number of point to generate this 10. Okay. तो 11 से इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगी. किस पे करना है? G पे. G के पैरेलल लाइन तक करना है. G से जो पैरेलल लाइन निकल रहा है उस पे ये 11 से ये लाइन ड्रॉ करना है. ठीक है. तो ये G से पैरेलल लाइन ये वाला निकल रहा है मेरा. ओके तो उस पे मुझे 11 से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है एंड आई विल गेट दिस 10th नंबर ऑफ पॉइंट ओवर हियर.
ओके, तो अभी तक मैंने इतना सारा जनरेट कर लिया है, 10th नंबर ऑफ पॉइंट आई जनरेटेड ओवर हियर. ओके, now after that once I got that 10th I will find out this 9th number of triangle. So 9th number of triangle is connected with F9 and 10. So F से जो पैरेलल लाइन आ रहा है वहां से 10 से मुझे इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है. ओके, सो 10 से इसे ये वाला पैरेलल लाइन वी विल जनरेट ऑन द एफ लाइन. ओके, सो 10 से ये पैरेलल लाइन मैंने एफ लाइन पे जनरेट किया एंड द कनेक्शन पॉइंट विल बी अ 9th नंबर ऑफ पॉइंट. Okay, so we got this 9th number of point. We found up to 7th. We left with only 8th number of point. तो 8th number of point कैसे जनरेट करेंगे? Which is rested on this 15th number of line and 9 8. तो 9 से ये वाला पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे 15 पे. ओके, तो 9 से देखो 15 पे ये पैरेलल लाइन जनरेट किया and I got this 8th point. ओके, और बस 8 को and 7th को कनेक्ट करना है. So we will get this diagram. ते फोर्थ सांगा ना फक्त. फोर्स का table. डायरेक्शन. हाँ अच्छा, ओके ओके, तो यहाँ मैंने मार्क नहीं किया है. आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट ओरली, जस्ट 1 सेकेंड. सो नाउ सी, इफ वी नीड टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ फोर्सेस ना, 1 सेकेंड. तो नेचर ऑफ फोर्सेस अगर आपको फाइंड आउट करना है ना, तो सी वी विल सी सपोज दिस, ये वाला पॉइंट अपन चूज करेंगे. ओके, सो फॉर दिस पॉइंट वी विल ऑलवेज गो इन अ क्लॉकवाइज ऑर्डर. ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज ऑर्डर में फॉलो करूंगी. तो सबसे पहले आएगा D5. So D5, D5. So this is moving in the downward direction. तो ये D के यहाँ D5, तो मेरा एरो ऐसे आएगा. Okay, so I will get arrow towards this D point. That means it is of a compressive nature force. तो ये compressive nature का force create करेगा. And D5 का वैल्यू कितना होगा? So यहाँ D से 5 तक का ये लेंथ मेरे ग्राफ पे मुझे मेजर करना है. And so and to that length I need to multiply it with the force. So जो कुछ भी लेंथ आएगा D5 से 5 तक अगर मेरा लेंथ 15 आता है फॉर एग्जांपल, so if this length is 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर into 1.4 करना है. तो जो कुछ भी आपको वैल्यू मिलेगा that will be your compressive nature force generated on this D5 segment. Okay, तो D5 is your principal rafter. तो ये देखो टॉप क्वाड पे D5 में आपको वो वैल्यू लिखना है. एंड सिंस दिस इज ऑफ अ कंप्रेसिव नेचर, सो कंप्रेसिव नेचर वी आर शोइंग इट विद द माइनस साइन. एंड जो कुछ भी टेंसाइल के है वो प्लस साइन से दिखाते हैं, तो यहाँ आपको माइनस साइन से वो दिखाना है. अंडरस्टूड? ओके मैम, ठीक है. Okay, likewise you have to follow the clockwise order for every other forces. So ये D5 अपन ने find, sorry, D6, D5 find out किया, उसके बाद 5-4 find out करना है. Okay, so 5-4 at a C point, the 5-4 will be, see 5-4, so 5 से 4 तक it is moving in the upward direction. So upward direction means ये 5 से 4 यहाँ फिर से मेरा upward arrow will be towards the C point. तो ये फिर से compressive nature का आएगा. Okay, and if for the same force, if we are finding it out from this point, ये पॉइंट से अगर सेम फोर्स को फाइंड आउट करें, then this force will be read it as a 4-5. ओके, ये जॉइंट से अगर वही सेम फोर्स आप देख रहे हैं ये दूसरे जॉइंट से, तो वो रीड कैसे करेंगे? अगेन इन द क्लॉकवाइज नेचर, 4-5. लाइक दिस वी विल रीड दिस फोर्स, हमेशा क्लॉकवाइज से रीड करना है. सो 4-5 का आएगा ये पॉइंट के यहाँ. सो 4-5 कैसे जा रहा है? 4-5 इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ 4-5 ये आएगा एरो यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो अगेन इट इज ऑफ अ कंप्रेसिव नेचर. तो यहाँ भी ऐसे टुवर्ड्स द पॉइंट आएगा, यहाँ भी टुवर्ड्स द पॉइंट आएगा. द नेचर ऑफ दिस फोर्स इज ऑफ अ कंप्रेसिव नेचर. एंड ये आएगा 4-5 का जो कुछ भी लेंथ होगा, सो दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द स्केल which you have chosen for your